Namaskar sabhi ko, and we explore Canvas nowadays, sharing you some awareness videos on mental wellness, as it's very much required during this COVID time and COVID era. We discussed about the music therapy, we discussed about the yoga, and also discussed with the quality of food, that is the organic food we need to inculcate in our daily life and to enhance our the mental wellness. And we discuss these type of topics with so many dear experts. And today we will discuss the role of homeopathy for maintaining mental wellness and curing mental illness. Homeopathy is the most holistic system of medicine, and the aim of the homeopathy is not only to treat the mental problems but to address its underlying causes and individual susceptibility too. And it's the pandemic time, and lot of stress, anxiety and depression has been created due to the fear factor in our life. Today we have Dr. Rashmeet Kaur, and she is MD homeopathy with us, and she is a homeopathic physician, an expert in the child psychiatry and women diseases. She has been awarded for the academic excellence from Dr. A.K. Walia, and she is trained with the COVID-19 emergency causes cures, and FIMNCI trained from KGM. Welcome you, Dr. Rashmeet. Please tell something about you and about your homeopathy to our listeners and audience, please. Thank you, ma'am. First of all, I thank you for inviting me and for giving me a chance to share my views on homeopathy and psychology. I'm practicing homeopathy from last 8 years in Lucknow, and I was ex-clinical support officer in KGM. Very good. So my MD specialization is on psychiatry. So my first thing I want to tell that homeopathy can cure the mental diseases. This is not clear to everybody, but my topic will start with this, that very less people are aware of this, that homeopathy can take that mental part and take care of that psychological diseases like anxiety, stress and panic disorders and OCD. So in this video we will carry about the fear which is produced during the time of pandemic, during the time of COVID. So what to do and how can a homeopathic physician can help in this. And this is very much required thing, ma'am, also. And please update about the role and scope of homeopathy in this mental wellness condition. तो अब जहाँ तक हम लोग रोल की बात कर रहे हैं, स्कोप की बात कर रहे हैं होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी के अकॉर्डिंग व्हाट इज हेल्थ. तो एज पर होम्योपैथी हेल्थ क्या है? द हार्मनी बिटवीन द मेंटल एंड द फिजिकल स्टेट. वेरी नाइस. सो व्हाट इज देयर, अगर हमारे दिमाग में, अगर हमारी मेंटली हम लोग पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हैं, तो हमारे फिजिकल कंप्लेंट्स अपराइज करेंगी. बिल्कुल. अगर हम लोग स्ट्रेस्ड हैं तो वो हमारे वर्क प्लेस पे, हमारी फैमिली में वो सारी चीजें दिखेंगी. स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट हाउ टू मैनेज इट, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. दैट वी नीड टू लर्न ऑल्सो. हमें सीखना है और होम्योपैथी उसमें हमें हेल्प कर सकती है इस चीज. तो जैसे मैम का पार्ट है काउंसलिंग का, मैम मेंटली रिलीफ देती हैं, मैम मेंटली लोगों को गाइड करती हैं, उनको समझाती हैं कि कैसे चीजें मैनेज करनी है. बट ऑन द अदर हैंड, जहाँ काउंसलिंग रिस्ट्रिक्ट होती है, देयर कम्स द रोल ऑफ मेडिसिन. तो जैसे हम लोग का ब्रेन है, तो ब्रेन की एक जो एक्सेस है वो कहीं ना कहीं मेंटल चीजों से वर्कआउट करती है. मेंटल चीजें क्या है? इंटेंजिबल हमारे इमोशंस हैं. तो उसकी वजह से ब्रेन में अफेक्शंस आता है, उसकी वजह से हमारे हार्मोन लेवल अप एंड डाउन होते हैं. वो हार्मोन लेवल है जैसे कि डोपामिन है, सेरोटिन है, तो उसके बाद ऑक्सीटोसिन है. तो जब ये अप एंड डाउन होंगे तो हम लोग के सर्टेन मेंटल डिजीजेस अपराइज करेंगी. जैसे कि सेरोटोनिन लेवल कहीं ना कहीं डाउन हुआ तो पेशेंट ओसीडी की तरफ मूव हुआ.
और अगर ओसीडी की तरफ मूव हुआ तो हम लोगों ने क्या देखा कि वो वॉशिंग, ही इज फ्रीक्वेंटली वॉशिंग द हैंड्स, he is always checking the door, and he is always looking at something, he has a fear of contamination. So out of all these things, जहाँ पे हमने देखा कि काउंसलिंग रुक रही है, तो वहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन से हम ये हार्मोन लेवल बैलेंस करेंगे. ओके. और दूसरा पार्ट होम्योपैथी का क्या है कि होम्योपैथी जब आई थी, इन्वेंट हुई थी डॉक्टर हेनेमैन के थ्रू जी, तो उन्होंने जब ही वाज एन एलोपैथ, so out of that he was frustrated out of the method what allopathic physicians were following, so he decided कि मुझे अब प्रैक्टिस करनी ही नहीं. जब उन्होंने ये डिसाइड किया तो he started converting the books, and after converting he got to know कि कभी कभी जो कुछ मेडिसिन होती हैं वो आपकी अंदर वही सेम सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं. यस यस. सो होम्योपैथी इज बेस्ड यूजुअली ऑन लॉ ऑफ सिमिलरिटी. सो फर्दर क्या हुआ कि जब उन्होंने प्रूविंग स्टार्ट करी, सो ही रिकॉर्डेड मेंटल सिम्टम आल्सो. वो खाली फिजिकल सिम्टम्स पे किसी भी मेडिसिन को जब देते थे किसी भी ह्यूमन बीइंग को, तो खाली ये चेंजेस नहीं नोट करते थे कि फिजिकली वो कितना इफेक्ट हुआ है, वो ये भी चेंजेस नोट करते थे कि मेंटली कितने चेंजेस आए हैं. सो अब जब ड्रग डिसाइड हुई या मेडिसिन बनी होम्योपैथी की, तो उसमें दोनों रोल का पार्ट आया, मेंटल लेवल का भी और फिजिकल लेवल का भी. इसीलिए होम्योपैथी को कहीं ना कहीं हम लोग इंडिविजुअल अप्रोच के साथ रिलेट करते हैं कि हर पर्सन एक दूसरे से डिफरेंट है. जैसे कि अगर फीवर है किसी को, तो फीवर के लिए भी रेस्टॉक्स अगर एक मेडिसिन है और बेलेडोना भी है, तो बहुत सारी हैं वैसे तो, देयर आर सर्टेन मेडिसिन फॉर फीवर, बट फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि अगर रेस्टॉक्स किसी को दी तो उसमें हम लोग देखेंगे ही इज मेंटली रेस्टलेस एंड फिजिकली रेस्टलेस. और अगर बेलेडोना दी तो बेलेडोना का जो फीवर होगा उस समय पेशेंट विल गेट फ्यूरियस. ओके. सो देयर इज अ डिवीजन बिकॉज ऑफ हिज मेंटल सिम्टम्स, बिकॉज ऑफ हिज मेंटल स्टेट. ओके. So this is all about homeopathy. Actually, homeopathy, I can say that it's a kind of customized treatment. क्योंकि person to person it differs. Exactly. है ना? It's not for all that. अगर हमें फीवर है तो हम सब पैरासीटामोल लेंगे, बट पैरासीटामोल नहीं, इसमें होम्योपैथिक में डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन है जो उस पर्सन के बिहेवियर, उस पर्सन की मेंटल कंडीशन को भी साथ में कंसिडर कर रहे हैं. तो वी कैन से दैट इट्स अ काइंड ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट. तो होलिस्टिक थिंग तो है ही, होलिस्टिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक. And fear prevails in the life nowadays. We all know that due to this pandemic condition, pandemic era जो चल रहा है हमारा 2020. Now it's fear prevails in our nowadays, and everybody is worried कि मैं इससे कैसे बचूं, इस प्रॉब्लम से मैं कैसे बचूं, and everybody is so much concerned for the family, for the self also, कि मैं इस बीमारी से बच जाऊं. So this condition keep us on us in the fight and flight continuous mode जो हमारा है एमिगडाला का, जिसको हम कहते हैं कि fight and flight mode. इसको continuously हम लोग सफर कर रहे हैं. इससे क्या हो रहा है कि we are our immune system is get now infected and we are more prone to the disease and the infections too. And please describe this condition because homeopathy में इसका बहुत अच्छा रोल है. और जैसे कि OCD के बारे में आपने कहा कि OCD जो है इसके बारे में भी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे. तो मैं ये चाहती हूँ कि आप फीवर को डिफाइन कीजिए कि ये जो फियर है इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं थ्रू होम्योपैथी. तो फियर की जहाँ तक हम लोग बात करें, ये बहुत बेसिक इमोशन है ह्यूमन बीइंग का. यस. सो इट इज नॉट कि ये डिजीज पार्ट है. फियर इज गुड, बट फियर इज गुड अप टू अ सर्टेन लेवल. अब जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लें कि एक हिरन का बच्चा है और उसकी माँ उसको ये टीच करती है कि तुमको जो है शेर से डरना है. वो शेर से डरना जो है इट इज फॉर गुडनेस, कि तुम अगर डरोगे बेटा तो तुम बचोगे. तो अदर पार्ट क्या है, लेकिन जब ये डर बहुत हाइट्स पे चला जाता है तो ये आपको नुकसान देने लग जाता है. जैसे गवर्नमेंट है, हम लोग को अभी कोविड-19 के लिए अवेयर करी कि आपको डरना है. क्यों? आपकी वेलनेस के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए. आपको हैंड वॉशिंग करनी है, आपको फ्रीक्वेंटली पब्लिक प्लेसेस में जाने से बचना है, आपको मास्क वेयर करना है. दैट इज फॉर अवर गुडनेस. बट अगर ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए, जैसे मेरे पास कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं तो वो अपने घर से भी नहीं बाहर निकल रहे हैं,
ठीक है, घर से नहीं निकलना चाहिए, अननेसेसरी नहीं निकलना। लेकिन आपको जहाँ पे जरूरत है थोड़ा अपने अच्छा। आप को पूरा सिक्योर करके, अपने आप को पूरा सैनिटाइज करके, मास्क पहन के तब निकलना चाहिए। लोगों से 1-2 फीट की दूरी बना के चलना चाहिए। तो ये सब जो नॉर्मल नॉर्म्स है इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जा रही हैं, लिमिट से क्रॉस कर रहे हैं, अनलिमिटेडली, तो वो मेंटल डिजीजेस में कन्वर्ट हो जा रही हैं। पेशेंट लोनलीनेस में जा रहा है, वो सोसाइटी में किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, वो सोच रहा है कि मेरे नेबर को हो गया तो मुझे भी हो जाएगा। ये नेचुरल डिजास्टर है, भगवान ने कुछ कर दिया है, अब हम लोग का मरने का टाइम आ गया है, तो मैं डर के एक कॉर्नर पे बैठ के सिर्फ भगवान का नाम ही लेते जा रहा हूँ। और मुझे मेडिकल चेकअप नहीं कराना है, क्योंकि मैं चेकअप कराऊंगा तो मुझे तो कोविड होगा ही होगा। This kind of condition. Despite of every precaution the person is taking, then also he is thinking कि मैं तो diseased हूँ। Despite he is taking आयुष मंत्रालय की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उसमें काढ़ा ले रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स उन्होंने ऐड करी हुई है अपनी लाइफ में जी। बट स्टिल मैं बगल वाले से बात नहीं करूंगा, मैं मोबाइल का इस्तेमाल अगर न्यूज देखूंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। सो अब जब ये इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, जब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मेरे वेलनेस के लिए हैं और वेलनेस के बाद ये मुझे कहीं और लेके जा रहे हैं, ये मुझे डाउनफॉल की तरफ लेके जा रहे हैं, तब हमें एक होम्योपैथिक फिजिशियन से ये हेल्प मिल जाती है कि इसको मेडिसिन के थ्रू कैसे कंट्रोल किया जाए। सो कुछ बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो होम्योपैथी में हेल्प आउट करती हैं। पहले तो मैं फियर डिस्क्राइब कर रही हूँ कि इस समय के कौन कौन से हैं। तो कुछ, एक तो है फियर ऑफ डिजीज। अगर आप अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि अब तो मैं इस डिजीज से कुछ हो नहीं सकता है, ये पैंडेमिक है और अब हम लोग का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा और कोई वैक्सीन नहीं आ रही है, तो वो फियर ऑफ डिजीज, आप उनको जितना भी समझा रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, देन यू कैन कंसल्ट अ होम्योपैथ। फिर फियर ऑफ मेडिकल चेकअप्स, मैं नहीं चेकअप कराऊंगा, नॉर्मल सा भी कुछ है, अगर नॉर्मल सा भी डिरेंजमेंट है या नॉर्मल सा भी फीवर है, मैं नहीं चेकअप कराऊंगा। बट एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक यू नीड चेकअप्स, यू शुड गो फॉर इट। फिर फियर ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कि ये बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है और अब जो है मुझे कोई बचा नहीं सकता। फिर अगेन द फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस एंड पेशेंट बिकॉज ऑफ दिस घर में अकेले ही पड़े हुए हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट इस समय क्या है, फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस, जो सबसे ज्यादा लोगों को फील हो रहा है कि मेरा सारा काम रुक गया है, बहुत सारे लोगों को जॉब से फायर किया गया, तो इसका भी जो डर है कि अब मेरी कभी लाइफ पेस में नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत समझा रहे हैं, बहुत काउंसिल कर रहे हैं कि अब तो चीजें बहुत सारी नॉर्मल हो रही हैं, लाइन टू लाइन आ रही हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सारी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं। तो उसमें अब जब जो पर्सन है समझ ही नहीं पा रहा है, सो देयर नीड्स अ काउंसलिंग एंड अ होम्योपैथिक मेडिसिन। सो पहले मैं एक मेडिसिन डिस्कस कर रही हूँ। फ्यू मेडिसिन, देयर आर प्लेंटी ऑफ मेडिसिन, बट आई विल टेक ओनली 5 or 6। लेकिन हम अपने सभी ऑडियंस से ये भी कहना चाहेंगे कि कोई भी मेडिसिन को आप खुद मत लीजिए, पहले उनको कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से, क्योंकि जैसे हमने कहा कि होम्योपैथी में कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। हो सकता है कि वो मेडिसिन किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छी काम कर रही है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति के लिए उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ उसको पहले से मेंटल प्रॉब्लम्स हो और जिसके कारण वो एनहांस हो जाए। तो प्लीज कंसल्ट फर्स्ट, मैम से आप कंसल्ट कर सकते हैं। हम इनका नंबर भी सर्कुलेट करेंगे आपको इसमें और इस वीडियो के साथ साथ। तो प्लीज मैम थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। जैसे मैम ने बोला है, ऑब्वियसली दीज आई एम जस्ट टेलिंग दीज मेडिसिन्स ताकि लोगों को समझ आए कि कुछ मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी में जो हेल्प कर रही हैं साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को। सो पहले मैं एकोनाइट के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो मेडिसिन है, इसमें जो पर्सन होगा उसको लगेगा कि मैं मरने वाला हूँ, और जब मैं मरने वाला हूँ तो मैं लेकिन ये पर्सन बहुत कीन होगा डॉक्टर की विजिट्स के लिए कि मुझे डॉक्टर के पास आप लेके जाइए, मुझे ठीक होना है। जब ऐसे पेशेंट्स आपके साथ में आए और कहे नहीं मुझे बीमारी है बहुत बड़ी, चाहे उसको हो ना हो वो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन जब ये फियर मेंटेन है तब देन वी विल थिंक ऑफ एकोनाइट। सेकेंड मेडिसिन इज जेलसीमियम। तो जेलसीमियम में क्या होगा, डर से उसके हाथ पैर कांप रहे होंगे। आप पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं और ये कांप रहा है, ये आ तो गया है मार्केट में, लेकिन इसको इतना डर है, सच काइंड ऑफ पैनिक टाइप आज कंडीशन। तो ही
बट ही विल लुक डल एंड ड्राउजी। आप कुछ भी बात कर रहे हैं, वो कांप रहा है, आप बात करना चाह रहे हैं, ही विल बिहेव लाइक, कुछ भी आप बोल रहे हैं, नो रिएक्शंस, ही विल डल, ही विल नॉट रिएक्ट। सो अब नेक्स्ट है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, एक मेडिसिन है एसिड नाइट्रिकम। ओके। सो एसिड नाइट्रिकम एवरीबॉडी केमिस्ट्री स्टूडेंट भी जानता होगा। सो ये भी एक मेडिसिन होती है होम्योपैथी में। सो इट कॉम्बैट द फियर ऑफ डेथ, लेकिन इसमें पर्सन का क्या डिफरेंस है, वो इरिटेबल होगा, यो फ्यूरियस होगा। ओके। कोई भी बात करेगा, कहेगा तुम चले जाओ इस कमरे से, मुझे पता है तुम बीमारी लेके आए हो मेरे लिए, तुम चले जाओ, तुम अभी बाहर गए थे और तुम अभी आए हो, वो he will shout on everybody. Okay. So other show some kind of reaction. हाँ, he will show some reaction. तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस था जेलसीनियम और एसिड नाइट्रिक में, कि जेलसीनियम जो थी कि बहुत ही डल था, ड्राउजी था, ट्रेम्बल कर रहा था, और एसिड नाइट्रिकम इरिटेबल था। Okay. He used to shout on everybody. Okay. So other medicine is सोराइनम। सोराइनम में जैसे भी मैंने बोला कि फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करेगा। तो अब किसी को फाइनेंशियल लॉसेस का डर है, सबके पास इंडिया में एक बहुत अच्छी चीज है सेविंग। यस। सो एवरीबडी कीप्स इट, बट डिस्पाइट ऑफ दैट सेविंग वी आर लुकिंग एट इट, एंड आफ्टर द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट आल्सो, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम लाई है, तो भी ये आदमी जो है हमेशा डरता रहेगा, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी तो लाइफ खत्म, ना मैं अपनी फैमिली को देख सकता हूँ। फॉर द फ्यूचर, एक फ्यूचर का वरी जो है, उसको वरी टाइप ऑफ थिंग। और जैसे कि कोविड में हमने बहुत सारे सुसाइडल केसेस के बारे में भी सुना, दिस इज वेरी ड्रास्टिक थिंग्स, कि डिजास्टर्स। अब लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, एंड पर्सन वेंट टू अ सुसाइड, दे कमिटेड अ सुसाइड, बीच में बहुत हैवॉक भी हुआ न्यूज़ चैनल्स में। सो सोराइनम इज वेरी गुड रेमेडी फॉर दीस पेशेंट्स। बट अगेन जो उनके साथ के लोग रह रहे हैं, दे हैव टू जज द पर्सन कि अब वो किस स्टेज में जा रहा है, कब उसको डॉक्टर की जरूरत है। क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि ये हमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच से चलना है। इफ वी आर वेरी प्रोएक्टिव ना, तो हम ऐसी चीजों को हम टाल सकते हैं, हम उनको बचा सकते हैं। और सुसाइड तो एक ऐसा ही कंडीशन चाहता है कि फैमिली को, उसके लव्ड वंस को, उसके फ्रेंड्स को एक प्रोएक्टिव अप्रोच में रहना है कि कहीं ऐसा कुछ प्लान तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसे सिग्नल्स आते हैं और हमारी जो इंस्टिंक्ट होती है, हमारी जो सेंस होता है, इसको हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, वो हमें ये सिग्नल देता है पहले से। और इवन मेरे साथ, मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेरे पास आजकल बहुत सारे ऐसे रैंडम कॉल्स आ रहे हैं कि दे वांट टू कमिट सुसाइड, और मुझे फिर उनको बहुत देर तक आई स्पेंड सो मच टाइम ऑन देम, मैं उनको प्रोएक्टिव अप्रोच के थ्रू उनको बहुत चीजें सिखाती हूँ, समझाती भी हूँ कि ऐसा ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सुसाइड जो है इट्स अ परमानेंट सॉल्यूशन टू द टेम्परेरी प्रॉब्लम। अभी जो कोविड का एरा है, इट्स अ काइंड ऑफ टेम्परेरी प्रॉब्लम। ये एक साल है जो हम इसको बियर कर रहे हैं, उसके लिए हम एक परमानेंट सॉल्यूशन कैसे ले सकते हैं? तो हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। काउंसलर से कंसल्ट करने के बाद आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, और कोई भी मेडिसिन आप अपने आप ना लें। डॉक्टर रश्मीत से आप कॉल कर सकते हैं, और इनका बहुत एक्सपर्टाइज है इस कंडीशन में, तो प्लीज आप इनसे जरूर कॉल करें जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो। और आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, और हम आपको इनको हम इनसे आपको कनेक्ट भी करवा सकते हैं। क्योंकि मैम का जो स्फीयर है वो काउंसलिंग का है, और इस समय फैमिली नहीं काउंसिल कर सकती है। यस। अब जब फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो फैमिली मेंबर्स लाख समझाएं, तब भी पेशेंट को या पर्सन को ये चीज समझ में नहीं आती है। बिल्कुल बेफिक्र होके, डोंट अंडरएस्टिमेट कि ये कोई साइकोलॉजिकल ऐसी ही बीमारी है, इसको, इसकी गंभीरता को हमें समझना पड़ेगा। और ये स्टिग्मा से भी हमें बाहर आना है कि हम अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्री के पास जाते हैं, तो हम हमारा एक सोसाइटी का जो एक स्टिग्मा भी है कि हम उसको एक गलत कंडीशन से ही हमेशा करते हैं। कभी कभी छोटे मोटे पैनिक अटैक्स के लिए भी हम कंसल्ट कर सकते हैं। और होम्योपैथी तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं आपको सुन रही हूँ, कि इसमें कितना कस्टमाइज्ड है कि डिफरेंट काइंड ऑफ फियर्स के लिए डिफरेंट मेडिसिन। तो दिस इज वेरी, मतलब मेरे लिए भी एक आई ओपनर टाइप की थिंग है जो मैम के साथ आज मुझे पता चल रहा है कि डिफरेंट फियर्स में डिफरेंट मेडिसिन हैं। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। So, नेक्स्ट मेडिसिन इज पल्सेटिला। यहाँ पे आदमी रो रहा है, अकेले बैठा हुआ है, उसको लग रहा है मुझे सब छोड़ के चले ही जाएंगे, मेरी कोई बात अब सुनिए। फियर ऑफ आइसोलेशन टाइप। तो फियर ऑफ आइसोलेशन है उसको, कहीं ना कहीं मैं आइसोलेटेड है भी इस टाइम।
अब कॉस्टिकम एक मेडिसिन है, इसमें ये डर है कि अगर मेरा बेटा बाहर जा रहा है काम पे, ये आज वापस नहीं आएगा, अब इसको कोविड हो जाएगा और ये एडमिट ही हो जाएगा। ओके। तो फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वन, यस। सो दिस मेडिसिन इज इंडिकेटेड फॉर देम। ओके। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने सारे मेडिसिन और कितने सारे डिफरेंट फियर्स, टाइप ऑफ फियर्स के लिए डिफरेंट मेडिसिन। तो इट्स वेरी मतलब हमें सभी को जानना बहुत आवश्यक है इसके लिए।